So in this session, we cover of the concept of AWT package. AWT stands for Abstract Window Toolkit. Okay, Abstract Window Toolkit is used to design graphical user interface. Okay, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जावा में डिजाइन करने के लिए हम AWT और स्विंग ये दोनों पैकेज है, ये दोनों पैकेज को यूज करके हम ये एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे. So abstract window toolkit, it is a package or it is a component that are used in all Java applets and application. So as already we know, applet is a program which is written in Java. For running the application, we require a browser. So applet require the GUI application. It contains the class that can be composed or extended. It ensures that every GUI component that is displayed on the screen is a subclass of component and menu component. Okay, so every GUI component that is, just a minute. Okay. So it provides a GUI component that are used in all Java applet and application. Okay, means AWT is providing you component that is used to create a GUI application. It contains the class that is composed or extended. तो यहाँ पर जो क्लासेस है, कुछ क्लास कंपोज्ड है, मतलब दूसरा क्लास को लेकर यूज हो रहा है, और कुछ ऐसा क्लास है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं और फंक्शनैलिटी को भी हम एनहांस कर सकते हैं. Ensure that every GUI component that is displayed on the screen is a subclass of component और मेनू component. तो आपका स्क्रीन में जो सारा क्लासेस आपको डिस्प्ले कर रहा है, इट इज अ सब क्लास ऑफ कंपोनेंट और मेनू कंपोनेंट. मतलब कंपोनेंट और मेनू कंपोनेंट का सब क्लास है. तो इट हैज ए container which is a abstract subclass. Abstract class is a word. Now it is a class where we define a abstract method and that method is implemented in the derived class. So here the container is a abstract class. Container means जहाँ पर आप कुछ चीज रख सकते हो. So it's just like a cup. In a cup you can take a tea, you can take a milk. So that is a container. So in a container you store any value. So it is a container which is a abstract subclass of component and include two subclass. One is panel, another is window. Okay, so container contain the two subclass. One is panel, another is window. So panel window means what? The total screen. So ये जो पूरा screen है, PowerPoint जो screen open हो रहा है, total screen is called as the window. और पैनल क्या है ना, ये जो विंडो को जो डिवाइड कर रहा है वो पैनल है. मतलब दिस ब्लू एरिया इज वन पैनल, रेड एरिया इज वन पैनल, दिस व्हाइट एरिया इज वन पैनल, द लोअर पार्ट इज वन पैनल. तो पैनल इज ए व्हाट सब पार्ट, और पैनल इज ए कंटेनर, और पैनल इज ए सब पार्ट ऑफ द विंडो. Okay, so now the two main type of container we are using. So the two main type of container we are using, that is window, another is panel. The container where we have to place the component. So two main type of container we are using. One is the total screen is a window, another is a panel.
तो विंडो हम किसको बोलेंगे ना, जो फ्री फ्लोटिंग विंडो ऑन द डिस्प्ले, जो स्क्रीन, जब स्क्रीन आपको डिस्प्ले कर रहा है तो दैट टोटल स्क्रीन इज कॉल्ड द विंडो। विंडो को डिवाइड जो हम करते हैं तो उसको उसको बोला जाता है पैनल। सो दिस red area is one panel, this white area is one panel, this lower part is one panel. So panel is a container of the GUI component that must exist in some other container such as window or applet. पैनल क्या होता है ना, एक विंडो को सब पार्ट करता है। मतलब ये जो जैसे कि स्क्रीन में आप ब्लू का एक फ्रेम दिख रहे हो, यहाँ पर रेड, और इसके बाद ये वाला जो मेन एरिया जहाँ पर आप कुछ लिख रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो ए कंटेनर। तो लास्ट एरिया में जो रेड पार्ट है दैट इज ऑल्सो कंटेनर। तो इस कंटेनर में आप कुछ कंपोनेंट ऐड करने के लिए, तो ये हो गया कंटेनर। कंटेनर में हम कुछ कंपोनेंट ऐड करेंगे, तो इस कंपोनेंट को ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे ऐड मेथड। तो ऐड कंपोनेंट इज यूज टू एडिंग ए कंपोनेंट इन ए कंटेनर। सो व्हाट इज दैट कंपोनेंट? तो जो कंटेनर हमने बनाया वहां पर कौन सा कंपोनेंट हम ऐड करेंगे? जब हम जीयूआई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहां पर क्या क्या कंपोनेंट रहता है, जैसे कि एक बटन, जैसे कि हम क्या करते हैं ना, लॉगिन पे लॉगिन जो हम करते हैं तो वहां पर एक साइन अप होता है, साइन आउट होता है। तो कुछ एरिया होता है जहां पर हम लॉगिन आईडी पास करेंगे, कुछ एरिया होता है जहां पर हम पासवर्ड पास करेंगे। तो सारा एक एक कंपोनेंट है। तो जावा में कौन सा कंपोनेंट है? एक है बटन है, उसके बाद चॉइस बॉक्स है। चॉइस बॉक्स मतलब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, तो आपको मांगेगा सिलेक्ट योर स्टेट, तो आप जब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करोगे तो वहां पर आपका सारा ऑप्शन दिखाएगा, तो इसको बोलेंगे चॉइस बॉक्स। उसके बाद होता है लेबल। लेबल डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ अदर कंपोनेंट। जैसे कि आपको लिखा जाता है लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी के पास में कुछ टेक्स्ट होता है डिस्प्ले करने के लिए। Label describe the description of other component like login id। login id जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है लेबल। ओके, तो लॉगिन आईडी एक लेबल होता है। उसके पास आपके पास होता है टेक्स्ट कंपोनेंट, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, एक ब्राउजर में ओपन कर रहा हूँ। दिस वन, दिस इज वन कंपोनेंट मीन्स टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर ये आपको मैसेज कर रहा है दैट यू हैव टू पास योर ईमेल आईडी और फोन नंबर, हियर इट इज पास टू गिव योर पासवर्ड। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट। लेबल किसको बोलते हैं? तो इसके पास में अगर हम लिखेंगे लॉगिन आईडी, तो लॉगिन आईडी पहले क्या आता था, यहाँ पर लिखा जाता था लॉगिन आईडी, तो यहाँ पर लॉगिन आईडी पास करेंगे। पासवर्ड, तो यहाँ पर पासवर्ड पास करेंगे। तो ये जो लेबल यहाँ पर डिस्क्राइब करता है व्हाट टू राइट, सो दैट इज कॉल्ड द लेबल। लेबल डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ अदर कंपोनेंट, मतलब अदर कंपोनेंट आप जो यूज कर रहे हो ये किसके लिए यूज कर रहे हो, तो ये होता है आपका लेबल। लिस्ट बॉक्स क्या होता है? अगर कुछ जगह पर हम एड्रेस पास करते हैं, जो एड्रेस जहाँ पर हम लिखते हैं वो एरिया थोड़ा बड़ा रहता है, so that is called as the what list, so that area is a what list where you have to input a value. Next is scroll bar. If you want to move the screen up and down, vertical and horizontal, we're using scroll bar. Then we're using text component. Okay, so text component we're using, the position and size of the component in a container is determined by the layout manager. तो कौन सा पोजीशन में आप आपका वैल्यू आप शो करोगे, तो ये हो गया लेआउट मैनेजर में। द लेआउट मैनेजर में हम यूज करेंगे जो
कौन सा कंपोनेंट किस जगह पर आपको डिस्प्ले करना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे set location, set size, set bound. So these are the three method we are using through which we can place the component in a required position. जो component है उसको required position में display करने के लिए हम use करेंगे set location, set size और set bound. Okay, got it बुझेला विश्वजीत, बीरू, कितीश? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now comes to the frame. Frame, to whom we are calling frame. Suppose here I open a notepad. Suppose I open a notepad. See that the notepad application has opened. When I open the Excel application has opened. So this application is called as a frame. फ्रेम का जो इंटरफेस है डिफरेंट रहता है, नोटपैड का इंटरफेस डिफरेंट रहता है, और फ्रेम का इंटरफेस वो डिफरेंट रहता है. तो it is called as a frame. The application is open, that application is open in a new window, that is called as the frame. Frame का कुछ नाम रहता है, यहाँ पर you have to save the store the name, file, edit, ये सारा वैल्यू आपका रहता है. So frame have the following characteristics. What are the characteristics the frame have? It is a soft class of window. Frame window का एक सब class है. It has the title and resizing kernel. तो फ्रेम का टाइटल रहता है और उसका रीसाइजिंग कर्नर भी रहता है. जैसे कि मैं अगर एप्लीकेशन ओपन करूंगा, ये जो नोटपैड है उसका एक रीसाइजिंग कर्नर है, लाइक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस बटन, क्लोज बटन. सो दीज आर कॉल्ड एज द फ्रेम ऑब्जेक्ट. मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, तो ये सारा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है. तो फ्रेम का जो नेम है यहाँ पर शो करेगा. तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो दिखा रहा है नोटपैड. अगर हम इसको सेव करेंगे तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा. तो इट इज कॉल्ड द फ्रेम. ओके, तो ये जो फ्रेम है इट इज ए सॉफ्ट क्लास ऑफ विंडो. तो टोटल स्क्रीन अगर विंडो हो गया तो फ्रेम उसका पार्ट है. तो इट इज ए सॉफ्ट क्लास ऑफ विंडो. इट हैव ए टाइटल एंड रीसाइजिंग कर्नर. रीसाइजिंग कर्नर में आपका क्या रहता है ना, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सारा ऑप्शन रहता है. तो फ्रेम जो होता है इनिशियली ये इनविजिबल रहता है. फ्रेम इज इनिशियली इनविजिबल. टू मेक इट इज विजिबल वी आर यूजिंग ट्रू मेथड. ओके, तो इट इज इनिशियली इनविजिबल. फ्रेम ऑटोमेटिकली आपको शो नहीं करता है, उसको विजिबल करने के लिए हम यूज करते हैं सेट विजिबल ट्रू मेथड टू एक्सपोज द फ्रेम. और फ्रेम को ओपन करने के लिए हम यूज करेंगे सेट विजिबल टू ट्रू. The frame have the subclass of window. It is a subclass of window. It have title and resizing kernel. Initially frame जो मैं एक नोटपैड आपको दिखा रहा था, that is also a frame. तो नोटपैड का रीसाइजिंग कर्नल जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ऑप्शन रहता है. तो यहाँ पर भी वो चीज़ है. फ्रेम आपको डायरेक्टली शो नहीं करता है, उसको आपको विजिबल करने के लिए सेट विजिबल ब्रैकेट में ट्रू मेथड यहाँ पर यूज करेंगे. It have border layout as the default layout manager. Okay, border layout as a default layout manager. Use the set layout method to change the default layout manager. Okay, set layout method is used to change the default layout manager. So that is called the set layout work. Now I show you the program of frame.
देखा एटा एठी कौन हला ए प्रोग्राम रे आर आउटपुट टा आसला मा एंटी so this is the output this one go I am with panel. This is the application name and this color is yellow. Okay. Now check here. Here I define public frame f object. I am with panel. It was frame name. This is the frame name. Okay, so how you pass this one? I am with panel. It is a frame name. Then public void launch frame function f dot set size. Frame dot set size. Frame size is 200 200. Frame size is 200 200 means height and width. Then f dot set layout is null. Okay, so here we are not passing the layout. मतलब यहाँ पर फ्रेम कैसे उसका लेआउट होगा तो मैं यहाँ पर कुछ लेआउट नहीं दिया, इसके लिए यहाँ पर नॉल पास कर दिया. नॉल मतलब वो डिफॉल्ट लेआउट जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा. तो लेआउट क्या है, क्या क्या डिफॉल्ट लेआउट आपका अप्लाई हो सकता है ये आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज f dot set background color dot yellow. That means here the frame background is yellow, this one. Then initially frame is invisible. To make it is visible we are using set dot true method. Okay, f dot set visible to true. Okay, so this is called as a program of frame class. बुझेला ना बुझेला नहीं विश्वजीत वीरू किति सौम्य Yes. no no next program or next concept is panel. Panel provide a space for the component. This enable the sub panel to have their own layout manager. The panel provide a space for the component. This enable the sub panel to have their own layout manager. After creating a panel, it must be added to a window or frame. Okay, so panel it provide a space for the component. This enable the sub panel to have their own layout manager. So after creating a panel, it must be added to a window or frame. Okay, तो पैनल को हम क्या बोलेंगे ना, पैनल जो है ये जो सब पार्ट है उसको पैनल बोलते हैं. मतलब ये जो रेड एरिया ये वाला पैनल है. तो पैनल का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप इसको क्या करना पड़ेगा ना, इसको हमको ऐड करना पड़ेगा. कहाँ पर ऐड करेंगे ना, फ्रेम में. बिकॉज फ्रेम इज द हायर पार्ट. तो फ्रेम हायर पार्ट है और फ्रेम के अंदर ही सारा चीज रहेगा. तो पैनल क्या होता है ना, जो सारा कंपोनेंट हम ऐड करेंगे जैसे कि बटन कंपोनेंट हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, ये सब हम पैनल में यूज करेंगे. अभी देखिए हम यूज करेंगे यहाँ पर फ्रेम विथ पैनल.
it. So now see that we're creating the object of class. Just I go to the main method. program जब आपका run होगा तो main method में जाएगा. तो frame with panel ये class हो गया. class का नाम है frame with panel. तो frame with panel object हो गया GUI window new frame with panel. तो frame with panel का नाम यहाँ पर हो गया. वो यहाँ पर मैं नेम पास किया. तो जो एप्लीकेशन ओपन होगा फ्रेम का नाम यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा. उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया फ्रेम डॉट सेट साइज 200 फ्रेम का जो साइज है तो हाइट एंड विड्थ हमने पास किया. फ्रेम का बैकग्राउंड हो गया ब्लू तो फ्रेम नॉल हो गया. उसके बाद में पैनल का ऑब्जेक्ट बनाया पैनल पैन न्यू पैनल पैन इज द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सेट साइज पैनल का साइज हो गया हाइट एंड विड्थ में 100 एंड 100 और जो पैनल का जो बैकग्राउंड होगा वो येलो दिखाएगा. फ्रेम का बैकग्राउंड ब्लू दिखाएगा पैनल का बैकग्राउंड येलो दिखाएगा. तो आज पैनल इज अ पार्ट ऑफ ए फ्रेम. सो आफ्टर creating a object of panel it is added in the frame f.add pan then f.set visible to true. Now we run the application now. So this is a frame with panel. This is a panel and this is the total area. The blue area is called as the frame. Okay. बुझेला वीरू सौम्य कितीस विश्वजीत बुझेला सर आउ थोड़े देखो एटा हला सबोले देखिबो आमे जतेबेले कोनोसी डिजाइन करिवा तो डिजाइन ने हमर गोटे पैकेज रहिबो import java.awt.star तापर ये जो टोटल स्क्रीन टा तुमको देखो जे एटा कहबा फ्रेम बोली कहबा प्राइवेट फ्रेम एफ ऑब्जेक्ट फ्रेम रो ना हला एफ तापर एटी गोटे कंस्ट्रक्टर रहिला एफ इज इक्वल टू न्यू फ्रेम तो फ्रेम रो ना दे देले ठीक है टाइटल मु देले टाइटल माने हमें एटी जहां भी वैल्यू पास करिवा फ्रेम विथ पैनल तो ए वैल्यूटा हमर स्टोर होबो कोठी ना टाइटल ले स्टोर होबो. तापर मु कोन कली ना ए ऑब्जेक्ट थ्रू रे लॉन्च फ्रेम फंक्शन टा को कॉल करबी. एटार फंक्शन माने हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले प्रथम देखो प्रथम जेतर हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट बनौचे हमर कोटा कॉल होबो कंस्ट्रक्टर टा कॉल होबो. कंस्ट्रक्टर रे कोन होबो ना हमें जो टाइटल टा पास करिचे फ्रेम रो टाइटल टा एटी सेट हे गला. फ्रेम रो टाइटल सेट हला परे तापर मु कोन कली ना ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु लॉन्च फ्रेम फंक्शन ए फंक्शन टा को कॉल करबी. जेतले फंक्शन टा को कॉल करबी फ्रेम रो साइज मु देले गोटे पर्टिकुलर साइज दे हला फ्रेम रो हाइट एंड विड्थ हला 200 फ्रेम रो बैकग्राउंड दे हला कलर डॉट ब्लू देन फ्रेम हला f.set लेआउट null फ्रेम रो लेआउट हला null तापर मु पैनल क्लास ऑब्जेक्ट बनेली पैनल पैन इक्वल्स टू न्यू पैनल पैनल रो ऑब्जेक्ट बना हला पैनल रो साइज दे हला pan.set साइज 100 एंड 100 जो छोटो पार्ट रहला बा कंपोनेंट में ऐड करिवा तार रहला 100 100 पैनल रो बैकग्राउंड हे गला येलो तापर पैनल टा को मु एठी ऐड कली f.add pan ओके तो पैनल टा को मु फ्रेम रे ऐड कली ऐड कला परे तापर हमें जानि छे जे फ्रेम टा सेमती विजिबल होबा नै तो हमें लिखिबा f.set visible to true लिखिबा. ओके तापर हमें कोन कले ना फ्रेम विथ पैनल क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली एटा नॉर्मल फंक्शन रहिला बुझिला. यस सर एटा फ्रेम विथ पैनल रहिला. ओके सो नेक्स्ट क्लास रे काली तुमको पढेबी लेआउट मैनेजर हमें केमती लेआउट करिवा को कंपोनेंट कोठी ऐड करिवा देखिबा लेआउट मैनेजर पढिबा तापर अलगा कंपोनेंट सब केमती ऐड करा हबो देखिबा. आ स्विंग कंपोनेंट एटा हला AWT स्विंग कंपोनेंट रे कहबो ना 3D इफेक्ट के रहइबो माने लुक एंड फील वाइज टिके बेटर रहइबो देन द AWT. तो एटा पढिबा काली क्लास.